Hi, Kuldeep. How are you? Please turn on your cameras. Guys, please turn on your camera. Hi, Tushar. So, where have you reached into your book writing journey then? कहाँ पे अटके वो बताओ. वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. Hello, ma'am. Good evening. How are you? I'm good, I'm good. Who's talking? Acha, Kuldeep. Okay. You said that you needed some help regarding book writing. क्या issue हो रहा है? The chapter writing, sorry. Can you hear me? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप म्यूट पे जी हो. मैम, आवाज है। हाँ, आपने बताया था कुछ गुड इवनिंग चैप्टर मैम। राइटिंग में. गुड इवनिंग. चैप्टर राइटिंग में कुछ इशू आ रहा है करके. मैम मैंने पूरा फॉर्मेट तो उसका बना लिया है। और मैंने जैसे चैट जीपीटी वगैरह पे जो प्रॉम्प्ट से वो डाल के एक ग्रुप बनाया भी था। हम्म. शेयर- मैम मैं अभी शेयर करूँ ग्रुप पे? वंस ग्रुप में नहीं, यहीं पे शेयर करना. 1 सेकेंड. मैंने एक्सेस दिया है आपको. आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो या चैट में डाल दो. व्हाटएवर. ठीक। आपने क्या किया? शेयर किया या चैट में डाला? मैम मैं अभी एक सेकंड शेयर कर रहा हूँ, बस फाइल खुली है। Hello, ma'am. I'm having audio issues. आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली. Yeah, but पहले मुझसे अनम्यूट नहीं हो पा रहा था. अभी अभी तो ठीक अच्छा. है. ओके. मैं ठीक है. चैट डिसेबल्ड आ रहा है मैम। चैट डिसेबल्ड नहीं है. 1 सेकेंड. ठीक ठीक आपको ठीक, वो वो आ चैट गया। पे क्लिक करके वो ब्लू पेन आइकन पे सेट करना पड़ेगा. जी 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 मैम, हो गया। मैं चैट जीपीटी पे लॉगिन क्यों नहीं कर पा रही हूँ? चैट जीपीटी डाउन है क्या? तुषार इज सो स्ट्रेस्ड आउट. तुषार, आपके बुक का क्या हालचाल चालू है? मैम थीम टाइटल सब टाइटल आइडेंटिफाई कर लिया है. हाँ. करीब 50 चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं. मैं आपको थर्सडे को पूरी कंटेंट और स्क्रीन पूरी फ्रीज हो गई. मेरी फ्रीज हुई है कि उनकी फ्रीज हुई है? उनकी हुई है ना शायद. हाँ जी मैम, हाँ. तो सो शादी की है। इज आई थिंक इन द कार. स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ मैम। मैंने फाइल तो अटैच कर दी, बट मैं इसको स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ इस चैट पे। सेकेंड. दोबारा अटैच करके यस इट देखता इज. हूँ। ओके. नाउ चेक. मैंने चैट ओपन कर दिया. चेक. ठीक है. हो रहा है एकदम. एम आई ऑडिबल? यस यू आर. आप वरना नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप में सेंड कर दो. मैं और लॉगिन करके ले लेती हूँ. ये मेन चैट में हो गया। मेन चैट, हाँ मेन चैट में ही हो गया तो भी चलेगा.
Yes, Tushar, you were saying something. So what I was saying was I have come up with a title and subtitle, and I have decided on the chapters that I want to focus on. Okay. So under broad categories, the book is coming to around 50 chapters. Each chapter visualized at around 7-8 pages. So I have a few questions around the content that I'm trying to push through those chapters, which I'll put across to you. और मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आप उस दिन बता रहे थे edit वेडिट and how to validate if the content is original or whatever. I mean, original is not the right word, but Plagiarism. how to ensure that the facts, because I'm relying a lot on, since this is non-fiction, I'm relying a lot on Google to get some case studies and anecdotes, and then I'm trying to sew them into stories. So I'm unsure. So essentially, my book is that what are the major 50 forces that one needs to keep in mind that are evolving so much in the current uh, uh, decade or the current times that we live in, and how to transform ourselves in a way that we can be relevant for the next 10-20 years at least. So these are like 50 forces I've identified. I'll give you the entire list on Thursday. I didn't get a time to bring them together in a single page. But so for each, I am building on chapters. So there would be an so prologue and all that I can write. But for each chapter, the outline also says that we'll kind of refer to certain case studies which make it more relevant, some examples of real life events, and maybe also some solution for how people can cope up with the change. So it could be a climate change, it could be technology, it could be anything, digital things like that. So those 50 forces I'll tell you. But when I'm writing the content, for example, I went to a couple of chapters, tried to fill in. So firstly is I go to Google, I type, so I get so many articles, so many white papers, or so many good, publications in terms of a lot of good institutes and think tanks and all that. So I'll have to read for each chapter, but how do I kind of validate that? Validate is not the right word. How do I kind of come up with what is most relevant of that content, which will be, so that is a challenge. I'm still confused about it. Did you And did you try the Ask the Public wala link that I gave? नहीं मैम, मैंने वो शायद मिस कर दिया या फिर मैंने देखा ही नहीं आपके नोट्स. So it's not in the notes. It is during the session that I had shown. Go and type the word on which you're writing your chapter, because in that, once you put that word or that 3-4 words wala together, it will go ahead and give you that logic chart. जो people are actually searching for on Google, you will get that list. And under that list, it would be easier for you to, go through it. तो उसमें ओनली तो आप कॉन्शियस क्वेश्चंस आते हैं ना? हाँ, सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं. तो those are actual questions that people are searching on the internet, and based on that you can work on it. ठीक है मैम, आई विल सर्च फॉर दैट. दूसरा है कि जैसे मैं अपने लैपटॉप पे लिख रहा हूँ, तो गूगल पे जाता हूँ, देन इफ आई फाइंड सम पेज और सम आर्टिकल और सम वाइट पेपर, एनीथिंग लेटेस्ट रिसर्च और पेटेंट which is important, I save it. बट मुझे समझ में नहीं आता कि व्हेन आई विजुअलाइज द कंटेंट की अगर पेपर बैक के हिसाब से सोचे तो कितना पेज होगा, बिकॉज नाउ आई एम टारगेटिंग अराउंड 350 पेजेस फॉर दैट. तो ये कैसे आप लोग समझते हैं कि
मतलब कितना, वो if 7-8 pages for each chapter, what does that mean? How many words See, in total? Yeah. when you अभी क्या होता है, फॉर एन इंस्टेंस व्हेन यू आर राइटिंग ऑन अ गूगल डॉक, तो गूगल डॉक में अगर आपको 120 पेजेस दिखते हैं, तो जब भी आप किंडल पे ई बुक पे जाते हो तभी वो रेड्यूस होते 80-90 पेजेस तक आता है, 30 पेजेस रेड्यूस हो जाता है. एंड व्हेन यू एक्चुअली डू अ पेपर बैक, अगेन वो 120 का 30-40 पेजेस बढ़ जाता है. So I always recommend, if you are planning to write a book that is so big, 350 pages wala, तो always go with like 2 editions to it. मैंने कुलदीप को भी वही सजेस्ट किया, हाँ because हाँ people will not हाँ, read it. correct. I remember you told Kuldeep sir. So हाँ, ये भी मेरे मन में सवाल था कि if there are 50 chapters, तो हम कैसे डिवाइड करें? 25-25 की 20-20 करके 60 बना दें उसको 3. नहीं, वो कैसे होगा कि आपका नंबर ऑफ पेजेस कितना हो रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, I'll tell you. I'm sorry. To be very honest, this is what is going to happen. I have a person in the community, और वो ना एक्चुअली अपने पेन नेम पे लिखता है, तो मुझे ना एक्चुअली उसका नाम पता नहीं है. सो व्हाट दिस गाय हैज डन इज, he has some civil engineering वाला background है something. Okay, so every time he learns something new, okay, he writes a book, and that is, he has created a series of 5 books. ओके, तो मैंने इसलिए कुलदीप को भी बोला था, अगर 21 है तो उसको 10 और 11 में डिवाइड करना. इफ इट इज 50 पेजेस, सो इमेजिन एवरी सिंगल चैप्टर वुड बी 8 पेजेस, तो आपके 10 पेजेस में 80 पेजेस ऐसे ही हो जाएंगे, एंड अनदर 20 पेजेस वुड बी योर फ्रंट एंड बैक मैटर. 100 पेजेस का बुक ऐसे ही रेडी हो गया. करेक्ट. सो वापस जब ये आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग करोगे तो वो 120-130 पेज का हो जाएगा, पेपर बैक का वर्जन. सिर्फ इसमें दिक्कत ये आती है कि पेपर बैक में यू विल बी प्रिंटिंग मल्टीपल टाइम्स, ये इश्यू आती है, तो उसमें कॉस्ट आपका बढ़ जाता है. लेकिन अगर आप पूरा ई बुक वर्जन में देख रहे हो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हो आप, that guy has concentrated only on ई बुक कंप्लीटली, तो उन्होंने पेपर बैक नहीं बनाया. तो आप एक ये काम कर सकते हो कि ई बुक में आप मल्टीपल डाल सकते हो एक, और पेपर बैक में सबका एक करके एक बड़ा बुक बना सकते हो. अच्छा, टू अवॉइड द प्रिंटिंग कॉस्ट. प्रिंटिंग कॉस्ट का क्या लॉजिक होता है मैम? मतलब कि आपके एक्सपीरियंस में अगर 200 प्रिंटिंग पेज कॉस्ट की बुक है तो see, the publisher that I will be giving you now, he has plans from 2,500 plus GST up to 3 lakhs plus GST. So you choose based on आपके बजट में क्या बैठता है. Okay, तो in the 8th session when I see कि भाई आपका बुक कंप्लीट हो चुका है, we'll give you an opt-in form. So you fill in that opt-in form कि भाई हमको पेपर बैक आपके से ये साथ कराना है. So there, if you fill in that opt-in form, we'll give you add you to the publisher group. Okay. तो आई थिंक 3000 तक आपको एक प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस मिल जाती है, जहां पे एडिटिंग यू विल बी डूइंग कंप्लीटली. एंड देन दे हैव आई थिंक 8 या 10,000 का पैकेज, कि जहां पे यू कैन गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स डिलीवर्ड टू योर कस्टमर्स. आई थिंक 1 या 2 आपको ऑथर कॉपी भी मिल जाती है. एंड if you need more author copies, you get it at a subsidized rate. तो करीबन एक 130 पेजेस का जो बुक होता है ना, उसका क्योंकि हम लोग ने एक क्लाइंट के लिए अभी कराया, who is not part of the community, because I do also do this offline book writing services, offline नहीं, one-on-one book writing services. तो उनका करीबन 150 पेजेस का बुक था, तो उनका MRP गया है करीबन 250 रुपए के, 250-280 के बीच में चला गया. दैट इज MRP आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उसका जो प्रिंट कॉस्ट जो होता है, अगेन इट इज पेपर क्वालिटी, डायमेंशंस एंड द कलर एंड नंबर ऑफ पेजेस. सॉरी. तो वो लोग वो पूरा कैलकुलेशन करके वो आपको खुद ही बता देंगे पब्लिशर कि इतना 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 है इसका मिनिमम कॉस्टिंग, आप ये रेंज तक आप रख सकते हो. एंड देन दे ऑल्सो गिव यू अ प्राइम लिस्टिंग.
for 1 तो month or 3 months, मैम मुझे ये भी पता नहीं है। मैम जैसे ये अमीश त्रिपाठी वगैरह की जो किताबें होती हैं, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी, ये कितने पेजेस की होती हैं? क्या नाम बताया आपने? कोई भी हो, अमीश त्रिपाठी हो, सुधा मूर्ति हो, कोई भी, ये आपका। 100-150 पेजेस, 100-150 पेजेस, उसके ऊपर नहीं होगा। अच्छा, ओके। I'll just check 1 second, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, ये मेलुआ वगैरह जो है वो उनकी है, ओके। हाँ, ये मैंने बुक हाँ बहुत मतलब पहले मेरे पढ़ी है। तो ऐसी नाम आया अभी, मैं अब तो नहीं, हाँ, शायद कुछ आई है रिसेंटली। 1 second, ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, I'll tell you। Paperback, so I'm just checking। अमीश त्रिपाठी की जो ये 2022 में जो बुक आई थी, दिस इज इन 400 पेजेस की बुक है टोटल। बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वाली जो बुक है ना, आई देयर, हाँ, उनका वापस स्क्रीन फ्रीज हो गया। ये वाली जो बुक है, इट इज मच मोर इनटू देयर आई फिक्शन। गॉट स्लाइटली डिस्कनेक्ट। हाँ, सो अमीश त्रिपाठी की ये जो बुक है ना, ये एक्चुअली फिक्शन में जाती है, माइथोलॉजिकल फिक्शन। तो सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो फिक्शन बुक्स होती है ना, लोग पढ़ते हैं, जैसे ना, हाँ, 1 सेकेंड, आई हैव टोनी रॉबिन्स का अनलिमिटेड पावर मेरे पास, जो करीबन 400 पेजेस की बुक है। मैंने गिन के आई थिंक 50 पेज पढ़े होंगे, उसके बाद नहीं पढ़ पाई, बिकॉज फिक्शन अच्छा, विल कीप यू हुक्ड, नॉन फिक्शन डजंट कीप यू हुक्ड, ये फर्क है। ओके। ठीक है, ठीक तब है। तो लॉजिक बनता है कि ब्रेक कर दो बुक को। इसीलिए मैं नॉन फिक्शन बुक को हमेशा बोलती हूँ उसको ब्रेक करो। ई बुक और जब बनाते ब्रेक वक्त आप करते हैं तो, चाहिए, हाँ बोलिए। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग मैम, ब्रेक करते हैं तो फिर कितने टाइम गैप में फिर सेकंड वो रिलीज करेंगे, थर्ड करेंगे? वो कितने महीने होता है कि क्या होता है वो? एनुअल जाती है सीरीज? सी, इट इज नॉट अबाउट, हम लोगों को कोई रिचुअल नहीं फॉलो करना है। जैसे सी कुलदीप इज राइटिंग 21 चैप्टर्स, सो इफ ही कैन गो अहेड एंड राइट ऑल द 21 चैप्टर्स अभी, ही कैन रिलीज बोथ द वर्जन्स टुगेदर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अगर वैसे नहीं करना है, फर्स्ट कम अप विद, से अभी ही आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कम अप विद 11 चैप्टर्स, देन कम आफ्टर एक 15 दिन, एक महीने के बाद में, देन कम अप विद द सेकंड बुक, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस कम अभी कम मालूम है। और होता क्या है, द फर्स्ट बुक कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, सेकंड बुक कंप्लीट के लिए करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज बाय द टाइम आई रीच माई थर्ड बुक, मैंने मेरा जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो होता है, जो रॉ ड्राफ्ट होता है, वो मैंने 3 दिन में खत्म किया है। प्रीवियस बैच में तो एक बंदा है श्रवण करके, आई थिंक मैंने सेशन नंबर 2 खत्म किया, एंड बाय द टाइम आई एंडेड अप इनटू सेशन नंबर 3, बीच में सिर्फ 4-5 दिन का गैप था। वो बंदे ने 10 चैप्टर नहीं 7 चैप्टर्स लिख दिए थे उसके बुक के, उसकी बुक में 7 ही चैप्टर्स थे, पर उसने वो लिख दिए थे ऑलरेडी। ओके। सो 4 दिन में अगर वो लिख सकता है 7 चैप्टर, तो कोई भी लिख सकता है। अभी मुझे तो ओके। एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने 3 दिन में लिखा। हम्म। और जैसे मैं कुछ कुछ बुक्स देखता हूँ, एक तो आपका कवर पेज का डिजाइन हो गया, और उनका होता है कि हर चैप्टर के बीच में एक पेज में कुछ और, एक ग्राफिक्स टाइप, या एक ड्राइंग टाइप, या समथिंग सिंबॉलिक एक रहता है। डज दैट इंक्रीज द प्रिंटिंग कॉस्ट, और वो भी किसी को वो बोलो ब्लैक तो आप चिपका? ब्लैक सी यू कैन डिजाइन इट ऑन योर ओन, ठीक है। अगर आप कहीं से ले रहे हो हाँ। तो गो हेड एंड गिव द क्रेडिट कि जहां से भी आपने सोर्स किया है। सेकंड, इफ यू नो कैनवा, replicate it, or in fact the other option is आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो, लाइक आइडियोग्राम में क्रिएट करने के लिए। ओके, आई ट्राई दैट। एक फ्रेंड से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका कैनवा के साथ साथ, he said कि ग्रॉक has also is doing very well with designs and images. I can try that probably. तो ये मैंने आई पता नहीं, but आई just हैवंट ट्राइड ग्रॉक।
हाँ मतलब मुझे भी पता चला, अभी 3-4 दिन पहले ही बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि ओके ग्रॉक भी आप एक बार ट्राई कर लो, उसका इमेज जनरेटर काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। ओके। पर उसमें एपीआई की वगैरह है ना, तो कर पाएंगे क्या? मुझे पता नहीं, मैं जाऊंगा, मैंने सोचा कि शायद आपने यूज किया हो कभी, क्योंकि कैनवा नहीं भी मुझे नहीं आता है, पर मैं जाके, मुझे एक दिन लगा के मैं ये सब देखूंगा। ओके, सो आई टेल यू, आई जस्ट गूगल्ड व्हाट ग्रॉक इज। हाँ ठीक है, ये मेरे को पता था। 1 सेकेंड में देख लेती फिर भी। ओके, ये भी किसी ग्रॉक कंपनी का का। है ना शायद, ये माइक्रोसॉफ्ट का है कि गूगल का है, किसी का है? हाँ, सो आई 1 सेकेंड में चेक कर लेती फिर भी। अगर उसका कोई फ्री साइट है क्या? हाँ। यू कैन टेस्ट ग्रॉक, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, मुझे जहां तक समझ में आया है, ग्रॉक कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज वो एपीआई यूज कर रहा है। आप चेक कर लो। अच्छा। आपको अगर मतलब इफ यू हैव अ टेक नॉलेज, जैसे आइडियोग्राम में कैसे मैं चैट जीपीटी में उसका प्रॉम्प्ट बना सकती हूँ, यू नो, हम्म। व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इमेजेस थ्रू मिड जर्नी, डैली एंड एवरीथिंग, उनका एपीआई होने की वजह से इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो आपने चैट जीपीटी का पेड वर्जन ले रखा है कि आप फ्री वर्जन यूज करते हैं? मैंने को मेरे पास सिर्फ कैनवा का प्रो वर्जन है बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। और अच्छा, मेरे पास सिर्फ जूम का पेड वर्जन है, बाकी किसी का भी पेड वर्जन नहीं है मेरे पास। तो फ्री में भी हो जाता है, फ्री वर्जन में भी? हाँ, मैं ओके सब मैम, ओके। फ्री वर्जन में काम करती हूँ। ठीक है, ठीक है मैम। चलो हम लोग कुलदीप पे के पास आते हैं। कुलदीप, यस टेल मी। हाँ मैम, मैंने आपको ये ग्रुप में शेयर किया है। हाँ, आई एम जस्ट चेकिंग, 1 सेकेंड मैं ओपन कर रही हूँ। काम कर रहा हूँ, तो बाद में बात करूँ। हाँ, वो सॉरी। फादर आए थे, उनसे कह रहा था कि कुछ काम कर रहे ओके ओके। तो नहीं कर पाया। कुलदीप, ये तो आपने आउटलाइन बनाया हुआ है सिर्फ। जी मैम। मैम मैं इसके अकॉर्डिंग ही पूछना चाह रहा था कि इसी के अकॉर्डिंग मेरे को ये सारा, मतलब आउटलाइन अगर ये सही है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा लिखने का प्रोसेस शुरू करूँ। आउटलाइन तो सही है, आउटलाइन में इश्यू नहीं है आपका। बट आपने सिर्फ इंट्रो लिखा है, इंट्रो के नीचे क्या लिखोगे? वो किधर है? वो मैंने ये अभी केवल आउटलाइन बनाया है। इसके बाद जैसे इसमें जो मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह डाउनलोड किए हुए हैं, और कुछ मेरे पास काफ़ी हम्म। सारी बुक्स भी हैं। तो फिर मैं उसमें से मैटर लेके और फिर इसमें लिखना शुरू कर रहा हूँ। बाकी ये जैसे ये फॉर्मेट जो है, इसी फॉर्मेट में चलेगा ये, जैसे इन्होंने ये नहीं नहीं, मतलब को। फॉर्मेट फॉर्मेट चलेगा। 1 सेकेंड, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, 1 सेकेंड। ओके, सो व्हेन आई एम लुकिंग एट इट, सी दिस, ये कोट आ गया, ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया। व्हाट डज दिस चेकलिस्ट मीन? ये मैम पॉइंटर्स ये होंगे। मैटर इसमें लिखना है अच्छा, इस तो ये चैप्टर के अंदर। चेकलिस्ट नहीं होगा, ये पॉइंटर्स होंगे। मतलब ये पॉइंट्स को आपको या पॉइंटर्स नहीं, हम लोग इसको सब टॉपिक बोलते हैं एक्चुअली। ये आपके सब टॉपिक्स हो गए। ये एक्टिविटी और क्विज और रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, ये कैसे मैनेज करोगे? ये मैम एक्टिविटीज में जैसे इन्होंने इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि बच्चों के लिए से इरप्टिक ट्रूथ होते हैं। अब ये सबसे पहले इसमें जो हम दे रहे हैं कि ये सीक्वेंस एक तरीके से चार्ट्स वगैरह होते हैं मेरे पास। जैसे मैं अभी आपको सो विल यू हैव दैट चार्ट विथ यू रेडी? हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरे पास चार्ट्स है ना? वगैरह है। हाँ, कि ठीक है। क्या सीक्वेंस सो होता है, कौन सा पहले दांत निकलता है, तो मतलब उसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी इमेजेस टाइप है। हाँ, इमेज डालेंगे। ओके, सो टेल मी वन थिंग। और इसके नीचे मैम ये टेबल है, परमानेंट टूथ में और नई टूथ में क्या डिफरेंसेस होते हैं।
तो मैम हर चीज तो मतलब जो अब मेरे पास जो डाटा है वो बेसिकली डेंटिस्ट पर्पज से है, बुक्स क्या वगैरह है? हैं, डेंट जो हम लोगों ने स्टडी करी है, डेंटिस्ट ने हाँ, जो स्टडी की स्टडी है, करी है। ओके ओके। हाँ जी, सो उस पर्पज से है। आपके हर एक चैप्टर करीबन कितना पेज के होंगे? मैम ये टोटल अभी जो मैंने ये बनाया है ये करीबन 9 पेज का है, नहीं ये नहीं, इसमें अराउंड 20। एक चैप्टर कितने पेज का होगा? दैट्स माय क्वेश्चन। ये मैम मैंने अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है, मैं उसका मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं है ओके। कि मैंने कितना। कुलदीप, सी टू इट की आपका जो एवरी सिंगल चैप्टर जो है ना, वो करीब जी, एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का हो। 1000 वर्ड्स का। तो हाँ, 1000 वर्ड्स का तभी होता है जब भी आप ये अभी जो है ना, ये आपका A4 साइज में है। इसको अगर मैं सेट कर दूं ना स्टेटमेंट साइज में, तो अभी ये पेजेस कितने हुए देख रही हूँ मैं। 14 पेज हो गए, 9 के 14, मतलब 5 पेज बढ़ गए आपके। ओके। सो ये पकड़ जी, के चलना कि 4-5 पेज, कम से कम 4 पेज का होना चाहिए। बट फॉर 4 पेज, ये आप पहले, ये आपने जो टॉपिक्स लिखे ना, इसको पहले आप एक चैप्टर के लिए लिख के पहले टेस्ट करो। क्योंकि मेरे जी, हिसाब से आप अगर ये 3 टॉपिक लिखोगे, सी व्हाट हैपेंस, आई टेल यू। हम लोग जब भी बात करते हैं, व्हेन वी आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, व्हाट वी जनरली डू इज वी गो हेड एंड do not go there about in details of a particular topic. This is what actually happens. तो जिसकी वजह से हम लोग जब भी लिखने को बैठते हैं ना, तभी पूरा जो कंटेक्स्ट होता है ना, हम लोग वो एक पैरा में समझा के खत्म कर देता है। So ideally, under every single chapter, you should have like at least six subtopics. I'm sorry. तो एक आपका इंट्रो हो गया, ये 3 हो गए, ठीक है। तो ये आपके 4 हो गए। आपको 2 डालने पड़ेंगे, तभी आपका 1000 वर्ड्स का खत्म होगा। 2 और मतलब इसी से रिलेटेड आपको, या फिर इसी को जो अभी आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो इसको थोड़ा डिटेल में जाके करना पड़ेगा। तो एक 1000 वर्ड्स पकड़ के चलना, 1000 वर्ड्स के नीचे मत आना, क्योंकि वरना वो बहुत छोटा ठीक, हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम। और मैम। एक चैप्टर को लिख के ना, एक चैप्टर को एक अलग वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखो। और उसका जी, वर्ड काउंट चेक करने के लिए मैंने बोला था ना, टूल्स में जाके जस्ट क्लिक ऑन वर्ड काउंट, इट विल गिव यू द नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे ये देखो, 14 पेजेस में आपने इतना स्पेसेस वगैरह यूज किए, दिस इज 2000 वर्ड्स विथ कैरेक्टर्स, जो पंक्चुएशन मार्क स्पेसेस के साथ, ये 13,000 है। ठीक है। तो एटलीस्ट उतना लिखना, वरना एकदम वो शॉर्ट होगा तो मतलब नहीं बनेगा, वरना वो ठीक, इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा बनेगा। ठीक है। ठीक। यस और तुषार, मैम टेल मैंने मी। एक आपको जैसे ये मैम वन पीडीएफ भी भेजा क्वेश्चन। हुआ है एक। वन हाँ थिंग, एक सेकंड में मैम, तुषार का आंसर करती हूँ। मेरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, आपके वो कुलदीप जी, आपकी उस मैम जो आपने टेम्पलेट शेयर किए थे, वो चैप्टर टेम्पलेट्स ही थे ना? मतलब उसको फॉलो नहीं करें, हम क्या करें आप? अगर सी, देर आर सर्टेन पीपल की जिनको चैप्टर टेम्पलेट जो है वो समझ में नहीं आता है, दे गो विद द फ्लो। बट कोई लोग ऐसे भी अच्छा। होते हैं कि जिनको क्या लिखना है यही समझ में नहीं आता है। तो इनके, तो इफ यू नो व्हाट हैज टू बी रिटन, जैसे कुलदीप नोज की अंडरस्टैंड, अंडर दिस वन चैप्टर आई नीड टू हैव दीज 4 सब टॉपिक्स, he will write it directly. Okay. But in case if you don't know what has to be written, then you use the 10 point chapter framework. ठीक है। ओके। या फिर you can always create a mix of both, ये भी चलेगा। ठीक है। आपने एक म- स्ट्राइकिंग बात बताई कि जैसे वो कौन रॉबिन्सन था, उसकी आपने 50 पेज ही पढ़े आउट ऑफ 400। सो आई मीन, आर यू अवेयर दैट दिस इज द जनरल रीडिंग बिहेवियर कि आप मे बी अ क्विक रीडर और यू डोंट हैव मच टाइम, आप ही ऐसा no, करते हो? no, I'll tell, see, I have this another book, मतलब बुक्स तो बहुत सारे हैं। The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. I finished that entire book in, I think, 2 days. आई थिंक वो रफली अराउंड 150-200 पेजेस हैं, मैंने 2 दिन में खत्म किया।
एक्चुअली टोनी रॉबिन्स के बुक में प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ. वन, it is too big. Two, the language in which it is written, though it is English, see, you have to understand the way Indians speak English, the way you London-based people will speak English, or the way US-based people will speak English, it will be a different stuff. जी मतलब वो लेवल अलग होता है. और ऊपर से क्या मालूम है, if it is not relatable, people will find it very difficult, and that is the whole reason why people don't prefer non-fiction books so easily until and unless वो 40 की उम्र पे पहुंच जाते हैं. बहुत कम 25-year-old स्टूडेंट्स मिलेंगे या 30-year-old मिलेंगे जो नॉन फिक्शन बुक पढ़ते हैं. हम लोगों को नॉन फिक्शन बुक कैसे पता है मैं बताती हूँ. गो टू योर स्कूल और कॉलेज लाइब्रेरी, जैसे बुक्स होंगी ना जो पर्सनल डेवलपमेंट में होगी, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यू विल फाइंड इट. वो हील योरसेल्फ नॉर्मन समथिंग जो विंसेंट है. पील, नॉर्मन हाँ, विंसेंट पील. करेक्ट. सो जिसका लैंग्वेज इजी होता है ना, हम लोगों को वो बुक्स मालूम होते हैं. करेक्ट. हम्म. हम लोगों को वो बुक्स मालूम होते हैं. एंड टोनी रॉबिन्स का जो बुक है, इट इज मोर अबाउट लाइक माइंडसेट डेवलपमेंट. तो इफ यू आर नॉट इनटू दैट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. ये प्रॉब्लम होगा. ठीक है, गॉट इट. मेरा क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा था कि a lot of authors write in a very roundabout way non-fiction, and they keep repeating or stressing upon a few concepts again and again. So, from the point of repetition, uh, how much should we focus on two chapters, not, or say chapter 1 not overlapping with chapter 20, so that can be beneficial from squeezing content, or some, just to See, make readers हाँ, मुझे comfortable. मुझे मुझे समझ में आ गया. I'll tell you. When I was writing my third chapter, okay, मैंने एक ही कंसेप्ट को दो अलग अलग तरीके से मैंने डाला था. वन वाज, हम लोग जो बोलते हैं ना डीक्लटरिंग करना. हम लोग डीक्लटरिंग किसको बोलते हैं? घर में का जो बहुत सामान पड़ा है हम लोग उसको डीक्लटर करते हैं. ठीक है. तो एक जो मेरा डीक्लटरिंग का कंटेक्स्ट था घर के सामान का. सो यू गो हेड एंड फिट, ब्रिंग अ रिदम टू योर हाउस. एंड एक वापस जो था ना, डीक्लटरिंग योर माइंड. So how will you go ahead and declutter your mind by, cutting down on the noise that is creating that anxiety or that is creating that overwhelm? I hope you got the point. I got the point. Yeah, no, that's a very good point. तो हाँ, तो ये तरीका भी हो सकता है. या दूसरा एक इशू मैंने जो नोटिस किया है, what happens is like sometimes the same concept is repeated again. That is very true. That also happens in non-fiction books. But actually उसमें क्या होता है मालूम है क्या? It is based on the life experiences a person will have. One second, have I started the recording? Give me 1 second. I've been talking. You did. Okay. I again start. It was started, but I just so another aspect to that is like the kind of experiences that you have. Now, say for example, wherever you are based in, ठीक है? अभी तक आपका जो भी एज है, जो भी आपका environment है, social setting है, the kind of life experiences that you will have, you will write from that point of view. Okay. But 5 years down the line, again, if you have to write the same topic, if there is no change in it, you are still going to write the same thing. I hope you got the point. But say, for example, in this 5 years, you did something different. Maybe you every year you are going in for a solo travel. For an instance, you're meeting a new set of people altogether who are at a very different wavelength. Then I was like, I don't know how do I put it. Okay, I was talking to my friend 2-3 days back, and I was telling her, how many people do we meet every single day? Maybe like हमारे जो 10-15 लोग हैं, that is fixed. Okay. Other than that, when we are traveling, we are going to office, we are into the same environment. So what happens is over a period of time, you will start feeling stagnant. If I don't know about other people, but I do feel stagnant. I feel stuck because I want to
if you want to move ahead in life, you need to understand one simple thing. You need to ensure that you are having new life experiences. You meeting new set of people, who you are meeting such kind of people who are at an or who might be legends at what they are doing, right? So then that's when you will get that kind of exposure. That will see, when you're interacting with me, I might learn something new from you. You might learn something new from me. Correct? तो वो लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके जो होते हैं, दैट इज ऑल दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर वर्क. करेक्ट? इसी को रिवाइज्ड एडिशन कहते हैं क्या? नहीं, रिवाइज एडिशन में आप रिविजन कर सकते हो, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. Say for example, you wrote topic 1 right now, and topic 2 may again there will be no overlapping because same concept. See, when I'm talking about mindfulness, I will always talk about meditation. तो मेडिटेशन में इसमें भी माइंडफुलनेस में बोला, उसमें भी बोला, तो अलग कुछ भी नहीं है. हाँ, पर वो माइंडफुलनेस में जैसे you keep yourself grounded, for instance, right? So another thing that also happens is, like, when we are talking about yoga, I don't know if you have experienced this, but when we do Yog Nidra, when you are in a complete altered state, if you're in a complete altered state, there is a very high possibility that you will feel as if your soul is floating above your body. I have experienced that. So tomorrow, if I have to write, people will write a normal book on yoga. Ye asan karo, wo asan karo. But when I'm talking about actual Yog Nidra, that is the experience that you will have. But again, how will I write about that particular experience? Just because I have experienced it. So you can make a revised edition out of this to add whatever experience that you had. Okay. The other option that you can do is you can go ahead and write a totally different topic wala book. That's also fine. तो ये आपके ऊपर है, मतलब उसी में एडिशंस करना है, यू मेक रिवाइज्ड एडिशन. अगर वो टॉपिक्स को लेके और उसको एक्सप्लोर करना है डीपली, गो फॉर अ सेकंड बुक. Okay, okay, got it, ma'am. Thank you. यस, डन. कुलदीप पूछो, आप कुछ रुके थे सवाल पूछने के लिए. मैम मैंने आपको 2 PDF और शेयर करनी है. वो तो मैंने देख ली, सेम ही है ना? हाँ मैम, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है. चैप्टर 1 का ही लिखा हुआ है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है. वेरिएशन है. Okay. Sorry. One second, I'm just trying to open. मेरे यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा. Okay, minute. इसको आपने A4 साइज में सेट किया हुआ ना? जी मैम, ये अभी इसको साइड में. इसको इसमें सेट करके चेक करो, स्टेटमेंट साइज में कितना पेजेस आ रहा है. मैम विच वन? ऊपर वाला जिसमें हाँ, जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में भेजा उसको चेक करके मुझे नंबर ऑफ पेजेस बोलना. कुलदीप, अनदर एस्पेक्ट टू दैट इज, आई जस्ट चेक्ड इट. मैं आपको मुझे वर्ड्स में भेज दूंगा दोनों. मुझे वर्ड काउंट ही बता दो एक चैप्टर का, और उसके स्टेटमेंट साइज में सेट करके उसका नंबर ऑफ पेजेस बता दो. Okay, another thing that I want you to keep in mind when you are actually writing these chapters is, मैंने अभी इसको खुल के देखा. You need to remember this. What you are writing is just to the point. जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, हम लोग जब भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं ना, हम लोग जब भी लिखते हैं ना, तभी हम लोग पूरा टू द पॉइंट लिखते हैं सीधा.
ओके। ओके मैम। सो बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो रीडर है उसको शायद आप जो jargon यूज करते हो या टू द पॉइंट आप 2 लाइन में लिखोगे वो उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखो जी अभी फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट ओपन दिस वन से, मैंने शेयर करी स्क्रीन। Okay, so when I come over here, see this. Every parent treasures that first toothy pin. It lights up the room and melts heart instantly. Yet few realize that child's dental journey begins long before the first tooth appears. Okay, now तो जैसे मैम ये जो मैं ये टिपिकल टाइमलाइन दिया तो इसकी इमेज और डालना चाह रहा था, मतलब उसकी इमेज और डाल सकते हैं। डू यू नो इसमें आपने एक चीज मिसिंग है या शायद जी मैम। लिखा होगा लेकिन मैंने देखा नहीं है, मतलब मुझे दिख नहीं रहा है। मैं बताती हूँ क्या। यू नो जब भी बच्चा पैदा होता है ना तभी उसको आई थिंक 6 महीने के आसपास है ना शुरू जब भी वो उसका दांत आने की जर्नी स्टार्ट होती है ना उसके जी पहले जी इफ यू नोटिस मेनी किड्स दे गेट अ लॉट ऑफ लूज मोशंस या फिर उनकी तबीयत खराब जी होने लगती है। ओके, दैट पार्ट इज जी मिसिंग। सी यू हैव डायरेक्टली सी, आप ये किसको टारगेट कर रहे हो? पेरेंट्स के लिए टारगेट कर रहे हो ना। तो जी आप मैम। अगर इसको टेक्निकल जार्गन में लिखोगे, टेक्निकल जार्गन इन द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जैसे मैंने ये चीज आपको बोला कि 6 महीने की उम्र से बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब होनी चालू हो जाती है, उनका पेट खराब होता है, उनका हाजमा खराब होता है, लूज मोशंस होने लगते हैं। देन वी जी स्टार्ट रनिंग टू द डॉक्टर, वो पीडियाट्रिक उसको वही दवाई देता है, फिर हम लोग घर के नुस्खे देते हैं पर उसके लूज मोशंस रुकते नहीं है। जी राइट, तो जी ये मैम। जो प्रॉब्लम है ये ये टीचिंग के पेरेंट्स से। इफेक्ट्स हैं, टीचिंग के क्या प्रिकॉशन के इफेक्ट्स हैं वो आप मेंशन करने के लिए बोल रहे हैं, क्या हाँ, क्या प्रॉब्लम्स तो होती हैं टीचिंग के टाइम पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तभी तो वो रिलेट करेंगे ना आपकी बुक को लेके। जी मैम। समझा? जी अभी आपकी बेटी छोटी है राइट, 6-7 महीने की है जी बेटा मैम। बेटा, सॉरी। सो जब भी आपका बेटा छोटा है तो उसको भी टीथिंग जब भी स्टार्ट होगी, कि मेरा बेटा है तो मुझे पता है कि मैंने उसके लिए जो यूज किया वो सारे मतलब देर इज दिस टैबलेट कॉल्ड डेंटोनिक, जो व्हाट इज दैट कॉल्ड, नहीं होम्योपैथिक के जो टैबलेट्स आते हैं जो मेडिकल में मिलते जी हैं, मैम, वी विटामिन के स्टार्टेड। होता है। हाँ वो पता नहीं मुझे एल्केरिया क्या होता है। टेल्केरिया वो ठीक है। बायोकेमिक सॉल्ट्स। हाँ, हाँ, सो मुझे एकेरिया पता के नाम नहीं से है। आती है शायद। हाँ, सो आई रिमेम्बर माई मदर इन लॉ प्रिस्क्राइब दैट, मतलब वो उन्होंने उनके एक्सपीरियंस से लाके उसको खिलाना चालू किया। बट एंड माई मॉम हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। व्हाट शी डिड वाज, आई थिंक वो जो केला का जो फूल आता है ना, केला का झाड़ का फूल, जी सो उसमें जो छोटे छोटे फूल आता है ना, यू रिमूव दैट फूल, उसमें का एक सम ब्लैक डंडी निकालो और वो ऐसे 5-6 जो लो, धो के उसको पीसो, उसका एक जेल बेस्ड समथिंग आता है वो खिला दो। So I gave my son both the ways and he never had a problem. But the people who didn't do this beforehand, they are still, my friend has a son who is अभी 1-1.5 साल का है, उसका बेटे को ये प्रॉब्लम चालू है। So you need to, if you're writing it for your the parents, you need to जी be, भले आप ये नुस्खे मत बताओ, ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन जी यू नीड टू हेल्प देम कनेक्ट द डॉट्स। जी मैम। एक्चुअली मैम मैंने ये शायद थर्ड पॉइंट जो है ना इसमें सब टॉपिक में, इसमें साइंस हाँ, ऑफ टीचिंग लिखा हुआ है। कहाँ पे? ये चैप्टर में तो ये नहीं है। जो मैं आपको वर्ड वर्ड वाली जो हाँ ठीक है, ये देखिए ये थर्ड बट पॉइंट है ना टीचिंग बट पिन और ये सब, इनके ये सॉल्यूशन नहीं कॉमन बताए, वर्ड। सॉल्यूशन भी बताना चाहिए। हाँ, बिकॉज सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप एवरी सिंगल चैप्टर को जैसे स्टार्ट करते हो ना कुलदीप, तो आप जी मैम। स्टार्ट करोगे प्रॉब्लम से, लेकिन आप नॉन फिक्शन लिख रहे हो तो हर एक चैप्टर के एंड में ना उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलना चाहिए। जी
सो अगर टीथिंग के पहले हाउ डू दे प्रिपेयर फॉर इट? अगर 6 महीने का बच्चा है तो व्हेन डू शुड दे एंटिसिपेट कि भाई इनका इसका दांत आना चालू हो जाएगा? अभी जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो दे यूज टू गो हेड एंड बच्चे के मुंह में हाथ डाल के चेक करेंगे कि जॉ इधर कड़क हुआ क्या। जी जी। सी सुमन विल ऑल्सो एग्री टू दैट। ठीक है, Yes, yes. हम लोग जॉ कड़क हुआ है तो चेक किया, हाँ कड़क हो गया, अभी इसके दांत आने वाले हैं, भाई दवाइयाँ चालू करो। तो जी। ट्राई एंड टॉक टू योर मॉम, शी माइट हैव एक्सपीरियंस हाउ दे यूज टू जज। ओके। तो आप थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट डाल पाओगे उसमें, वरना ये डॉक्टर के हिसाब से लिखोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जी। जाएगा। क्योंकि ओके, इन्फो आज के दिन गूगल में सारा है कि गूगल पे पहला मिल टीथ जाता है। कब आएगा, ये कब आएगा। तो मैं हाँ अगर पढ़ना चाहूंगी तो उसमें वही रिलेटेबल जो एक्चुअल में हाँ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एंड आई फील थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए टू मेक इट जी। मतलब इंटरेस्टिंग वो टू भी डे। It's सी not a ह्यूमर serious भी business that your child is teething. It's a natural process whether सी आई एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अभी ह्यूमर डालना है नहीं डालना है वो आप सोचो, बट आई टेल यू अनदर थिंग दैट मे बी यू कैन इंक्लूड। आई हैड अ फ्रेंड, उसने, मुझे याद है उसके बच्चे के जितने भी दांत गिरे, वो सब दांतों को वो बोलती थी मैंने बाहर फेंका करके, एवरी सिंगल टूथ शी हैज कलेक्टेड एंड शी हैज केप्ट इट टिल डेट। हैपेंस। करते हैं मतलब बहुत हाँ, जस्ट बिकॉज बहुत से लोग करते हैं। सुमन सेड ह्यूमर, तो इसलिए मुझे वो चीज याद आया बिकॉज आई फाउंड इट वेरी फनी। तो पहले वाले बहुत से जमाने लोग में करते वो हैं, दांत हम टूट जैसे गया तो हमसे भी ले घर के जाते ऊपर हैं। फेंको। हमसे भी ले जाते हैं कुछ लोग। मतलब बहुत ज्यादा पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि उनको बच्चे की हर एक एक याद, हर एक एक चीज सुनो के रखनी है, संभाल के रखनी है, तो वो पेरेंट्स करेक्ट, करते हैं ये सब। करते हैं, करेक्ट। So make it much more relatable that people can actually कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, ओके। और हर चैप्टर को एंड करते वक्त don't focus on, like, just giving a lot of information. The ideal focus would be you start with a problem and you end with a transformation. ठीक है। ठीक है? जी मैम। Yeah, I hope I have answered all questions. Suman, shoot. तुषार is done, कुलदीप is done, अभी आपकी बारी, बोलो। आप कभी से सुन ही रहे हो। मेरा इतना ट्रैवल चल रहा है ना, तो इसलिए सारा गड़बड़ा गया है। Okay. तो मैं बुक तो अपना लिख रही हूँ, वही है यूज इट और लूज इट, द चॉइस इज योर्स, दैट्स द टॉपिक। एंड दिस हैज 51 प्रैक्टिकल ways to beautify your inner world. Okay. And in that 51 practices को मैंने 10 सेक्शन में बना दिया है। 2 pages का है मेरा, 10 सेक्शन में कर दी। Every section has 5 topics in it. Okay. One has ठीक है। 6, rest has 5. So Okay. these are simple, जैसे मैंने पीके वाला आपको भेजा था कि लेबल नहीं हाँ। करना है, उस तरह से है ये बुक पूरी की पूरी। Okay. अभी मैं स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मेरा दिल में जो आता है वो लिखा, देयर इज नो कि ये 10 पॉइंटर्स एंड दिस एंड दैट, बिल्कुल नहीं फॉलो कर पाती हूँ। नहीं, आई टेल यू, आप जो लिख रहे हो ना कंटेंट, वो एक्चुअली जाता है क्रिएटिव फिक्शन में, वो नॉन फिक्शन में नहीं जाता है। सो व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग अ क्रिएटिव फिक्शन, यू कैन नॉट एक्चुअली मेक इट इनटू अ 10 पॉइंट चैप्टर फ्रेमवर्क। अगर मुझे भी क्रिएटिव फिक्शन लिखना है या मुझे फिक्शन भी लिखना है, अभी फिक्शन के लिए भी हम लोगों ने 12 पॉइंट स्टोरी आर्क क्रिएट किया है, बिकॉज किसी किसी को स्टोरी दिमाग में होती है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा पॉइंटर्स में डाल दिया ना तो हमको एक सीक्वेंस मिल जाता है, अच्छा इसके बाद ये लिखना है मुझे। तो इट इज जस्ट अ स्केलेटन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिक्शन और क्रिएटिव फिक्शन कैन नेवर बी रिटन दैट वे। ओके, बट आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए रहेगा कि ये फ्लो होना चाहिए, तो वो फ्लो में आप टेस्ट कर सकते हो कि ये फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसलिए होता है। सो मैं भी जब ये बुक लिखती हूँ, आई डोंट फॉलो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट कम्स विथ एक्सपीरियंस, कि भाई कोई फ्लो नहीं फॉलो करो, जो दिल में आया लिख लो, काइंड हाँ ऑफ। वही हो रहा है, अचानक से ही नहीं हाँ नहीं ये चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नया आइडिया आया तो पूरा ही चेंज कर देती हूँ उसको। हाँ।
So नहीं it's चेंज मत करो, लिख के रख दो, क्योंकि ये याद रखना दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू माइट नॉट लाइक दैट चैप्टर, but when you are actually revisiting, doing the editing and proofreading, that is a time that probably you might like it and you okay. might keep that as well. So do not delete anything. No, I don't delete. जो लिखा है फिर I make a copy of it and then हाँ I work on that. So original is हाँ there. exactly. Original is there, हाँ, ठीक है, वो original वैसे ही is there. रखना। Copy पे changes कर रही हूँ मैं। तो हाँ ये तो चलेगा मेरा चलेगा। हो जाएगा, मुझे जो भी मैं टाइम फ्रेम मेरे को लगने के बाद मैं इसको तो कंप्लीट कर दूंगी। पर मैं अभी तक आई हैव नॉट गॉट अ हैंग ऑन, अभी जैसे लॉन्च भी करना है तो इसको मैं कैसे लॉन्च करूँ, एंड वो मुझे पूरा वापस से रिपीट इफ इट्स पॉसिबल कि हाउ डू वी लॉन्च अ ई बुक, द एंटायर प्रोसेस आई नीड टू अंडरस्टैंड अगेन। एक दूसरा मुझे ये है कि जैसे मैं कैनवा आईपैड पे चला रही हूँ, आईपैड से मैं इसको मेरे फोन पे कैसे लाऊं, आई नीड टू नो दैट। आई हैव आईफोन एंड आईपैड, बोथ आर एप्पल। कैनवा ना? हाँ, कैनवा कैनवा आईपैड तो पे है। हाँ, तो कैनवा में आईफोन के ऐप स्टोर में चले जाओ, डाउनलोड ओके, कैनवा। नहीं नहीं, इट्स ऐप। कैनवा डाउनलोड है आईपैड में, मैंने कैनवा में मेरा बुक कवर डिजाइन कर लिया है। हाउ टू गेट दैट इनटू द फोन? आई एम नॉट एबल टू सेंड यू आल्सो दैट हाँ डिजाइन। हाँ, तो वो उसमें इतना ही करना होता है, मैं बताती हूँ। आपको कैनवा आपके आईफोन पे डाउनलोड करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू लॉग इन यूजिंग द सेम क्रेडेंशियल्स, सेम लॉगिन ओके आईडी पासवर्ड। तो आपके ओके प्रोजेक्ट्स में वो जो होगा आपका बुक कवर, वो वहां पे सेव्ड होगा एंड यू कैन ऑलवेज पुट इट ऑन व्हाट्सएप। अनदर ऑप्शन दैट यू कैन ट्राई इज लाइक check if your iPad has ये वेब व्हाट्सएप डाल लो ओके। है बट एंड बस मैं अभी तक किया ही नहीं, मैं चाह ही नहीं रही थी, एक जगह ही बहुत है व्हाट्सएप दिमाग खाने के लिए। ठीक है। नहीं, वहां से आप लॉग आउट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। Like yes. when I'm working on my laptop, my phone, my WhatsApp is always connected on my laptop, क्योंकि मैं फोन देखती ही नहीं हूँ। ओके मतलब कहीं पे पड़ा रहेगा मेरा फोन, इसलिए मैं कभी कभी, इफ यू नोटिस, आप लोग भी कभी कभी मैसेजेस डालते हो, आई वुड बी बिजी इन समथिंग, तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा वो तभी मैं देखूंगी, बिकॉज अदरवाइज फोन बजते रहेगा, देखते रहेंगे तो काम नहीं होता है। सो जब भी इफ यू थिंक कि अभी ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि ये करना है, तो इसके लिए लॉग इन करो, काम हो गया, लॉग आउट कर लो, मैटर क्लोज। okay. So I don't ठीक need है। to download those files anywhere. यू विल नीड टू डाउनलोड इट, बट अभी आपको अगर सिर्फ ग्रुप में शेयर करना है, तो इसके लिए यू कैन ऑलवेज सेंड अस अ पिक्चर पहला, इफ यू वांट अ कंफर्मेशन कि भाई इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है कि नहीं, एंड दैट शुड बी गुड इनफ। ओके, एंड ये ठीक है। लॉन्च वाला कैसे करें? लॉन्च वाला मैंने दिखाया था आई नो। अभी। क्या लॉन्च वाला क्या अटके हो वहां पे, वो बताओ। एवरीथिंग, द एंटायर प्रोसेस अभी भी ओनली अभी ऑल। तक हमारे मतलब हम 10 लोगों में शायद किसी ने भी लॉन्च किया नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। किसी ने भी नहीं किया है। सो दैट हम सारे यहाँ बैठे प्री लॉन्च कर देते हैं अपनी बुक को। मुझे और आज का मैटर भी मेरे में काम से कराना मोस्टली है। तैयार हो गया। मोस्टली सबके पास मैटर तैयार हो गया, बट किसी ने अभी लॉन्च नहीं किया है। अभी मुझे दिक्कत क्या है मैं बताती हूँ। मुझे बताना है आप लोगों को एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग, बट फॉर दैट मेरे पास चैप्टर्स नहीं है। ओके, तो मैं हम्म। आज एक काम करती हूँ। अच्छा, बाय द वे, वन थिंग, थर्सडे को वी हैव सेशन, प्लीज इंश्योर दैट आप लोग है ना टाइम पे ज्वाइन करो। आई एम 90% ट्राइंग कि भाई मैं इसको पोस्टपोन नहीं करूँ। एक्चुअली आई हैव अ बहुत बड़ा इवेंट एट माई प्लेस ऑन फ्राइडे, मतलब फैमिली फंक्शन है, मेरे ही घर में है। तो आई एम ट्राइंग कि भाई मैं ये 2 घंटे कैसे भी करके मैं आ जाऊँ करके, सेशन मेरा पोस्टपोन नहीं करूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1 वीक डिले हो गया, 1.5 वीक डिले हो चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो इंश्योर प्लीज बी ऑन टाइम, क्योंकि जो आज का एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग और उस दिन का वाला जो काम होगा, मुझे वो सब कराना पड़ेगा। पर एटलीस्ट राइट 2-3 चैप्टर्स एंड कम, ताकि मैं उसके ऊपर टेस्ट करके आपको दिखा सकूं। ठीक है, मैं आपको प्री लॉन्च दिखा देती हूँ। आपको प्री लॉन्च कैसे चाहिए वो बता दो मुझे सिर्फ। कैसे मतलब? मैं तो खुद मतलब खुद आइडिया दूंगी। नहीं, प्री लॉन्च इन द सेंस
यू हैव द बुक कवर डिजाइन वैसे उसी को यूज करके चाहिए कि आपको बुक कवर डिजाइनिंग के साथ से चाहिए, वो बताओ। अभी तो जो बुक कवर डिजाइन किया है आई थिंक सो वही यूज करूंगी, बस आपको भेजने के बाद आप जो चेंजेस बताओगे उसमें। तो वेब व्हाट्सएप लॉग इन कर लो ना, अगर मैं देख रिव्यू कर पाई तो मैं फटाक से बता दूंगी। अभी तो आप चेंजेस करके बाद में सेंड कर सकते हो। हम्म। जस्ट चेकिंग मैम कि मैंने आपने, तो मैम शायद भेजा हुआ है सारा ग्रुप पर। आपका तो आ गया है, आपका आ गया है, देख लिया मैंने उसमें शायद रिव्यू भी कर लिया था। आमिर का भी आ गया है। वाई आई कांट फाइंड सुमन्स बुक कवर, वन सेकेंड, जस्ट चेकिंग। आई कांट, मुझे वो प्री लॉन्च वाला मैसेज देखा हुआ मैंने याद है, बट मुझे इमेज नहीं दिख रही है। वन सेकेंड। देखो मैंने अभी गया शायद ये। I've just sent it. हाँ मैं वही चेक कर रही हूँ, one second। मैम आप सर्च में प्री लॉन्च डालेंगे वैसे मैम का ही खुल रहा है सबसे पहले। यूज 51 हम्म, practices to keep your inner power alive। हाँ वही मैं ये निकाला ना मैंने, आई गॉट दैट इमेज। ठीक है, अभी आपको प्री लॉन्च करना है कि एडिटिंग फॉर्मेटिंग करना है, वो पहले मुझे बता दो, तो वो हिसाब से मैं दिखाऊं। मेरा तो प्री लॉन्च करने का मन है। ओके, ठीक है। सो मैं अभी तो सिंस आई एम हियर, मैं आपको, आपका इमेज आपके पास ऑलरेडी होगा एडिटेबल फॉर्मेट में, तो मेरे पास नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं आपका इमेज को अपलोड कर रही हूँ फिलहाल। सो मैंने इसको अपलोड किया और मैं इसको सेट कर रही हूँ फिलहाल। नहीं ये नहीं, जो अभी भेजा मैंने आपको, आप बोलो ना। एक सेकेंड होल्ड करना। सेम ही तो है दोनों में, क्या फर्क नहीं है? नहीं, अभी जो भेजा आप देखो, ऑथर स्टारडम में भेजा है मैंने। हम्म, ले लिया, टेंशन मतलब ले लिया। दोनों तो सेम ही लग रहा है मुझे, नहीं, साइड बाय साइड। व्हाई डिड यू चेंज द फॉन्ट ब्लैक आई एम कलर जस्ट में? ट्राइंग। सो वही आपका इनपुट चाहिए कि व्हाट शुड आई कीप। हम्म, ठीक है। सो इफ आई वुड हैव बीन योर प्लेस, हम्म। ये अभी मुझे ना पता नहीं है कि कैसे थोड़ा सा स्किप करके देखते हैं। ओके, सो इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, मैं इसको ना इरेज करती हूँ। आई शो यू व्हाट इट शुड लुक लाइक। हाँ ठीक। अभी मेरे पास कैनवा का प्रो वर्जन है, हम्म। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग।
ओके, मैंने कलर सेम कर दिया. So I come down to text. No, I'll come down to say text यहाँ पे. ये है, यहाँ पे मैं फॉन्ट पे गई हूँ अभी. दिस इज DM Sans दिख रहा है, ये मेरा फॉन्ट है. So I will check some fonts which I like. The Bebas New is a good font for this titles. या फिर प्ले फेयर डिस्प्ले करके है. देन देर इज बेटर करके है, एंटोन है, मॉन्टसेराट है. सो ये ऑल ऑफ दीज आर गुड फॉन्ट्स फॉर दिस. सो नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस टू से 75. लेट्स सी हाउ डज इट लुक. छोटा ही लग रहा है, पता नहीं शायद में ये बड़ा नहीं है इसमें. ओके, सो if I would have to do it, I might just do this. Did I use the wrong spelling or what in your book? आपकी बुक में ना स्पेलिंग क्या था? डबल ओ है. मैंने भी वही ग्रामरली गलत है करके बोल रहा है मुझे. LOSC होना चाहिए. ठीक है ना, तो हम लोग चेंज कर देते हैं. ओके, सो आई विल चूज दिस एंड आई एम जस्ट टेस्टिंग. अभी मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ. सी पॉप हो रहा है. हाँ. सो नाउ आई कैन, ये मैंने कलर चेंज किया. सो नाउ आई कैन क्लिक ऑन दिस और मैं इसका भी लेटर स्पेसिंग को मैं बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे लेटर स्पेसिंग बढ़ा चाहिए. फिर मैंने इसको यहाँ पे आके मैंने वापस से लेटर स्पेसिंग बढ़ा दिया. आ गया सेम लाइन में. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है. आई नीड सम बोल्ड फॉन्ट्स. सो आई एम गोइंग टू कम ओवर हियर. लेट्स ट्राई सम अदर फॉन्ट्स. लेट्स ट्राई एंटोन. सी, नहीं, और कोई बेटर फॉन्ट है क्या चेक कर रही हूँ मैं. तो जनरली बुक कवर्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स sans serif fonts होते हैं. सो आई एम जस्ट चेकिंग व्हाट sans serif fonts कैन लुक गुड. ओपन सोर्स ट्राई किया मैंने. इट्स एवरेज. आई चेक नॉर्वेस्टर, बट ये नहीं हो रहा है. सो आई नीड समथिंग डिफरेंट. Let's check Arial and bold. This is decent, but not the one that I would go for. Let's try this. Even Roboto is good, so we can try Roboto and test. No. Leak Spartan. Oh, this was looking good. Let's try Oswald. Build. मैं अभी क्या कर रही हूँ मालूम है, मैं आपको दिखा रही हूँ. आपको जो पसंद आएगा यू आर गोइंग टू चूज दैट. ठीक है, तो मैं आपको ये ऑप्शंस बता रही हूँ कि अभी आराम से बैठ के फाइंड आउट कि भाई मुझे मेरी आंखों को कौन सा बेटर लग रहा है फॉन्ट डिजाइन करते वक्त. देन ओवर ईयर ये पर्टिकुलर पार्ट है, इसको मैं शायद करते वक्त आई माइट यूज अ वाइट कलर. ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैं वाइट में करूं. दूसरा एक ऑप्शन ये भी है मेरे पास. 1 सेकेंड, आई जस्ट पिक ऑन दिस इमेज. ये पूरा उसने इरेज कर दिया. देखो रिली फिलहाल मैं अभी स्क्रैच से बना रही हूँ. मेरे यहाँ पे ना कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को somehow.
What is this? See, there is one more way that you can go for it. I'll show you that as well. अगर ये confusing लग रहा है तो scroll through all of these. ये देखो यहाँ पे ना सब रेडीमेड fonts है, दिख रहा है? I'll copy this. Come here. I'll paste it here. Okay, so यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है? And then I say use it or lose it. See this. अब मैं इसका जो font size जो है ये कलर में चेंज करूंगी to suit this. मैंने इसको white कर दिया for example. क्योंकि वो gradient में है, I can put it in complete white as well. ठीक है, अभी ये ज्यादा है तो इसलिए मुझे इसका साइज छोटा करना पड़ेगा. So I'm going to put it as 200. तो मैंने ये वॉच आपका बीचों बीच है इसलिए मैं ये छोटा कर रही हूँ. आप वॉच को भी अलाइन कर सकते हो. So ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया. So you remember I said Anton is a good font for book covers. See, better लग रहा है? Now what was that? 51 practices to what? Beautify your inner world. So I'm just checking बाकी इसमें का fonts कुछ मुझे पसंद आ रहा है क्या? Okay, so I come over here, paste, scroll down. This is the easiest way that you can go ahead and use a template actually. अरे ये वॉच भी हिल गया. So this I might use in a bright yellow, for example. और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ और इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा छोटा कर देती हूँ. ये मैंने मेरे लाइकिंग के हिसाब से बनाया, आप आपके लाइकिंग के मुताबिक बना देना. Because I want it to pop. Then now I want my name to show up, like it would be your name definitely. So I'm just checking कि भाई कुछ मुझे पसंद आ रहा है क्या. You can use the same font that is there in a different size as well. तो मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं डाल दूँ सुमन कंसल, करेक्ट ना? Yes. खत्म हो गया मेरा बुक कवर रेडी. अभी बाकी जो खेलना है वो खेलो. इजी. इसको चाहिए तो मैं इसमें अगर थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा सकती हूँ. ये लाइन स्पेसिंग जो होता है लाइंस के बीच में का डिस्टेंस बढ़ाएगा. सी दिस. और दूसरा जो स्पेसिंग है वो लेटर स्पेसिंग बढ़ाएगा. तो मैं थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग बढ़ा कर रही हूँ. तो मुझे अभी लग रहा है कि मुझे लाइन स्पेसिंग भी बढ़ा करना बढ़ानी चाहिए. पड़ेगी. तो मैं अभी इसका लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा कर रही हूँ. और ये वॉच को मैं थोड़ा नीचे ले लेती हूँ. एंड आई विल मूव दिस ऑल्सो थोड़ा सा डाउन. दैट्स इट. हो गया. ये मेरा बुक कवर अभी फिलहाल के लिए रेडी है. तो मैं फिलहाल अभी इसको मैं डाउनलोड कर रही हूँ. When I'm clicking on download and then I click on file type will be my PNG. Then instead of all pages, I'm going to select current page and I say done and I say download. Okay. Now, when you get this downloaded, one second, let me delete this. Okay. Now, इसके बाद वाले स्टेप में अभी आपका बुक कवर रेडी हो गया है. Now I'll go down to DIY book covers, 3D book mockups. So when I come over here,
मैं इसमें कॉम्पोजिट चूज करूंगी। कॉम्पोजिट में सेकंड में इसमें का मैं फर्स्ट वाले को क्लिक कर रही हूँ एंड आई से नेक्स्ट, देन आई क्लिक ऑन ब्राउज। ये मैंने अभी जो टेम्पलेट डाउनलोड किया उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। ओके एंड देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी ये नेक्स्ट करने के बाद में मैं नीचे आके इसका मैंने PNG डाउनलोड किया है। चेक, हाउ इज इट? नाइस। अच्छा लग रहा है? हाँ। हाँ, तो इफ यू वांट जो सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव बुक कवर्स विच आर मिनिमलिस्टिक, क्लटर फ्री। तो मेरे को ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, तो मेरे सारे बुक कवर्स मैंने ऐसे ही डिजाइन किए एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है, सो यू कैन प्ले अराउंड कि भाई आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है, बेसिक भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सिर्फ मे बी वॉट यू कैन डू इज, ये जो आपका सब टाइटल है यू कैन ऑलवेज पुट इट इन कैपिटल लेटर्स, लेकिन फॉन्ट साइज छोटा, एंड जस्ट प्ले अराउंड विद द कलर्स एंड एवरीथिंग। तो मेरा अभी 3D बुक मॉकअप रेडी हो गया है। तो प्रॉम्प्ट तो आप यूज कर सकते हो ना चैट जीपीटी का, हाँ। प्री लॉन्च का, वो हो जाएगा ना आपसे? ओके, तो मैं अभी प्री लॉन्च का डिजाइनिंग दिखा देती हूँ आपको। मैम ने शायद व्हाट्सएप पे ग्रुप पे व्हाट्सएप किया है शायद प्री लॉन्च का। हाँ, तो अच्छा। मैं वही यूज कर रही हूँ ना। उनको सिर्फ वो डिजाइनिंग पार्ट अटक रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक अदरवाइज शी वाज एबल टू डू इट। नहीं, मैं ये आई DIY आई वगैरह सो, भी नहीं की थी। तो क्या एक चीज का DIY? ये बुक का जो मॉक का आपने वो बनाया है, हाँ, तो वो वो बनाना पड़ेगा वेबसाइट ना कौन सिर्फ सा है? कवर। DIY कुछ का ना अभी आपने? हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ ढूंढना पड़े, देखना पड़ेगा। हम्म, एवरीथिंग इज रिटन डिटेल में। हम्म, हम्म। एक सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग वो उनका प्री लॉन्च किधर है इसमें। वन सेकेंड, सर्च प्री लॉन्च। ओके, इन्होंने प्री लॉन्च किया लेकिन खुद किसी ने बुक खरीदा ही नहीं। ओके, आई एम जस्ट कॉपिंग द एंटायर टेक्स्ट। 3 सितंबर, करेक्ट? यही डेडलाइन है ना आपका? हाँ। मिल गया मुझे। ओके, सो हियर आई एम, जो मुझे प्री लॉन्च का आपका ऑफर लेटर मिल गया है, एंड 99 एंड देन इट इज 149। ओके, सो लेट्स डिजाइन द प्री लॉन्च वाला थिंग नाउ। सो आपके यहाँ पे प्री लॉन्च टेम्पलेट दिया हुआ होगा, सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दैट प्री लॉन्च वाला टेम्पलेट। सो अगेन द होल आइडिया इज कि आपको कैसा चाहिए ये आप डिजाइन करोगे। सो दिस इज माय प्री लॉन्च टेम्पलेट। ओके, तो नंबर 1 स्टेप, आपने अभी इमेज क्रिएट किया, इमेज के बाद में वी क्रिएटेड अ मॉकअप। अभी मुझे वो मॉकअप को कैनवा में अपलोड करना पड़ेगा। आई कम डाउन टू अपलोड्स, आई से अपलोड फाइल्स, एंड दिस इज द 3D बुक मॉकअप दैट आई हैव क्रिएटेड। ओके, ना कोई भी इसमें जितने भी टेम्पलेट्स है, आपको जो भी है आपको पसंद आता है, यू यूज दैट। सो करंटली मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई कोई इसमें आपको ये फ्रेम मिलेगा, कोई कोई टेम्पलेट में ये फ्रेम नहीं होगा। यू गोइंग टू जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपको यहाँ पे जाना है एंड जस्ट इसको ड्रैग करके आपको इधर ड्रॉप करना है। बुक कवर आ गया इधर। अभी इधर आपका यूज इट और लूज इट, एंड दिस इज 51 ways to beautify your inner world। ओके, इधर आप आपका फोन नंबर डालोगे, दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, और इधर का 99 वैसे ही छोड़ोगे,
यहाँ पे आपका जो डेट है, यू आर गोइंग टू एंटर दैट डेट। अगर आपने 3 सितंबर डाला है, सो दिस पार्ट जहाँ पे डेट लिखा है, यू विल अपडेट द डेट। अभी बचा क्या? QR कोड। तो QR कोड के लिए आपको, आप द इजीएस्ट वे दैट आई वुड सजेस्ट इज, आपके आईफोन पे आप कैनवा डाउनलोड कर लो, लॉग इन यूजिंग द सेम क्रेडेंशियल, सेम ईमेल आईडी, सेम पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद में गो डाउन टू योर जीपे या फोन पे ऐप, ठीक है। नाउ वन सेकेंड, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट स्टेप्स, ताकि आप जब भी रिकॉर्डिंग देखो तो यू शुड बी एबल टू डू इट। सो ओके, सो जीपे में आपका नाम जहां पे लिखा होगा ना, टॉप में, टॉप राइट में एस लिखा हुआ होगा। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एस, जहां पे आपका नाम होगा, और आपके नाम सुमन बंसल के राइट हैंड साइड में यू विल सी अगेन एन एस विद अ QR कोड का छोटा सा। सुमन समझ में आ रहा है? यू म्यूटेड। मैंने कहा मेरे पास जैसे पेटीएम है। आई डोंट हैव पेटीएम, बट द स्टेप्स मोर और लेस आर सेम। आजकल पेटीएम कोई यूज नहीं करता है वैसे, ठीक है। द स्टेप्स आर द सेम। आप आपके पेटीएम में लॉग इन करो, आपका जहां पे प्रोफाइल होगा आप उसके ऊपर क्लिक कर लो, और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में सी, जैसे आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस, देख रहे हैं यहाँ पे एस लिखा हुआ होगा दैट कॉर्नर साइड में। तो ये वाला जो एस है, मैंने उसके ऊपर अगर क्लिक किया, सो इट इज शोइंग माई UPI। सी, हाँ, तो मेरा वो मुझे, QR हाँ कोड दिख रहा है मेरा। शेयर हाँ, QR तो बोलते हैं। हम आपको शेयर QR कोड नहीं करना है। अगर उधर ओके, डाउनलोड का ऑप्शन है तो डाउनलोड करो, जैसे सेव जीपे में QR। एक डाउनलोड, और हाँ, सेव QR कर लो, डाउनलोड कर लो। अगर नहीं होता है तो उसको स्क्रीनशॉट कर लो एंड कम डाउन टू दिस, क्या बोलते हैं उसको, कैनवा। कैनवा। अभी कैनवा में मैं आऊंगी, तो अगेन आई गो डाउन टू अपलोड्स, आई से अपलोड फाइल्स, से फॉर एग्जांपल, so this is a GPay QR code that I already had on my phone, on my laptop। तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अभी अगर आप देखोगे तो इसमें अनवांटेड बहुत सारा चीज है, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई विल क्लिक ऑन दैट इमेज एंड क्लिक ऑन दिस 4 कॉर्नर वाला स्क्वायर दैट सेज क्रॉप। तो मैंने ये इसको क्रॉप किया, आई से 1 on 1, तो इसको मैं इसने और कट कर दिया, और थोड़ा सा मैं उसको और छोटा कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई से डन, मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लिया। इसको मुझे अभी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा टू फिट दिस पार्ट, दैट्स इट, ठीक है। एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस अगेन, शेयर, आई से डाउनलोड PNG, इंस्टेड ऑफ ऑल पेजेस आई विल जस्ट से करंट पेज एंड डन। लेकिन समझो अगर मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, मैं वो भी आपको ऑप्शन बता रही हूँ, ये कलर मुझे नहीं पसंद आया, तो आई एम गोइंग टू गो बैक, क्लिक ऑन दिस कलर वाला आइकन, I come over here and I'm going to just experiment with the colors. See, check. मैं अलग अलग कलर से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आ रहा है। I'm going to choose that. समझ में आया? हाँ। Okay. So that's how you will be doing it. One second. One second. I'm just removing this क्योंकि ये डेमो में यूज होता है। Okay. कैस क्लियर? और ये इमेज को आपको सोशल मीडिया पे डालना है, आपका प्री लॉन्च का जो आपने टाइप करके भेजा था उसको वो भी सोशल मीडिया पे डाल दो, दैट्स इट, ठीक है। जी। any other questions? भाई पूछो, सोच रहे अभी क्या सवाल पूछे। मैम जितना काम किया उसमें ये इतना पूछ सकते थे, जैसे काम बढ़ेगा तो कोई सवाल बढ़ेगी। I'll tell you one thing, ठीक है। आउटलाइन आप लोगों ने लिखा, ठीक है, ठीक है। मैं एक बात बताती हूँ, दिस गोज फॉर एवरी सिंगल पर्सन आउट हियर इन द रूम, ठीक है।
हम लोग जब भी स्कूल में जब भी बच्चे थे, व्हाट यूज्ड टू हैपन इज द मोमेंट हम लोगों को ना ऐसा टीचर बोलती थी एग्जाम में ना ये 5 चैप्टर्स आने वाले हैं, हम लोग ऐसे इंडेक्स खोलते थे और फिर इंडेक्स देखना, अरे ये 5 चैप्टर्स आने वाले हैं, मुझे 5 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, हर चैप्टर में करीबन 20 क्वेश्चन होंगे, यानी मुझे 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। समझा? डू नॉट डू दैट। आपका बुक कभी लिख के नहीं होगा। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, उतना ही करो। जी ठीक है? ज्यादा बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे अभी जो होगा ना वो पूरा, अभी इसके बाद वाला जो होगा वो आपका एडिटिंग प्रूफ रीडिंग है, उसके बाद वाला जो सेशन में होगा आप फॉर्मेटिंग करोगे, उसके बाद वाला जो होगा जिसमें आप Amazon बेस्टसेलर कैसे बन सकते हो मैं वो बताऊंगी, उसके बाद में जो होगा अगेन यू विल लर्न हाउ टू अपलोड, उसके बाद में होगा आपका पेपर बैक फॉर्मेटिंग। तो ये सब चीजें आप सीखने वाले हो। तो अगर वो आई हैव सीन पीपल कि भाई बुक लिखना शुरू करते हैं और जैसा ये टेक्निकल स्टफ चालू हो जाता है ना छोड़ देते हैं, तो वो चीज का मत सोचो। अभी जो हाथ में जो काम है ना उसके ऊपर ध्यान दो, बिकॉज वॉट सी आई एम टेलिंग यू दिस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अभी देखो मेरे घर पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी पॉज दिस। तो डू नॉट लुक एट द लार्जर पिक्चर कि भाई मुझे 21 चैप्टर्स लिखने हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन, या 51 चैप्टर्स, राइट तुषार? 51, हाँ 51 चैप्टर्स। सो ये मत सोचो कि मुझे 21 चैप्टर्स लिखना है या 51 चैप्टर्स लिखने हैं। थिंक, हाँ मुझे आज ये एक चैप्टर लिखना है, दैट्स इट। एंड कुलदीप, ट्राई एंड आइडेंटिफाई आपके हर एक चैप्टर में कि अगर दिस इज वन मोर थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, ट्राई एंड आइडेंटिफाई आपके सर्कल में, आपके नेटवर्क या आपके कोई पेशेंट्स जो जो चैप्टर आप लिख रहे हो उस वो बच्चों के पेरेंट्स अगर है आपके पास, उनका डिटेल्स है, तो ट्राई एंड कॉल देम अप टू फाइंड आउट कि उनको वो पर्टिकुलर मोमेंट पे, हर बच्चा अलग होता है, हर एक की जी एनाटॉमी अलग होती है, तो उनको एक जनरलाइज सिम्टम्स क्या दिखे थे, टू मेक इट मच मोर रिलेटेबल, ये आप कर सकते हो उसमें, क्योंकि आपके पेशेंट्स रहेंगे, हर एक एज ग्रुप का बच्चा रहेगा आपके इसमें। जी तो ट्राई एंड फाइंड आउट। अभी जैसे रूट कैनल, हम लोगों को जब भी बहुत दांत दर्द होता है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी जाके डॉक्टर बताते हैं भाई तुमको रूट कैनल करना पड़ेगा, तब तक हमको पता ही नहीं रहता है, वी आर लाइक जी हाँ दांत दर्द हो रहा है। सी सुमन इज लाफिंग एट इट। मैं इसलिए लाफ कर रही थी, डॉक्टर जो है ना अपना पर्सपेक्टिव से ही सोचता है, हाँ आई नो। especially allopaths, so what they have been taught, they do not want to go into other things कि हाँ practically क्या क्या problems आती है, and these are also real. So जब सोनाली जी ने कहा ना कि talk to your patient, so that will really help you. हाँ, बिकॉज वो है ना एक्चुअली ज्यादा कनेक्ट करेगा आपके रीडर्स के साथ में, थोड़ा आपका एक दो दिन जाएगा, ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपके घर पे ही एक्सपीरियंस है, सो दैट इज गॉन। सेकेंड चैप्टर जो है वो पर्टिकुलर एज ग्रुप के एक दो पेशेंट्स को से भी बात कर लोगे ना, या थोड़ा सा सोचोगे भी, बिकॉज आप अभी जो कर रहे हो, क्योंकि मैंने अभी तक तुषार का बुक देखा नहीं है, एंड सुमन इज व्हाट शी इज राइटिंग इज मोर अबाउट क्रिएटिव फिक्शन द वे आई राइट, सो लेकिन आपका जो है वो टेक्निकल जार्गन्स की तरफ ज्यादा जा रहा है। और मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ मैं, this can go as a warning as well. So what I have seen in the author community is this, and most of the authors who plan to write their books is, if आप है ना आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस उसमें जब भी डालते हो ना बुक में, तभी उसमें आप आपका हार्ट एंड सोल डालते हो। लेकिन अगर आप वो नहीं डालते हो, आप अगर जो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट है ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दी ऑथर्स लूज दैट मोमेंटम और फिर वो लिखना बंद कर देते हैं। ठीक है? तो वो बुक अच्छा में वो हर एवरी सिंगल चैप्टर में ना आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपका खुद का लाइफ एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज जो है वो नहीं है। अभी जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ना उसमें वो नहीं है।
और मैं वो देखना चाहती हूँ, ओके। ठीक है। वो क्योंकि इट इज लाइक, मैं एक सिंपल चीज बताती हूँ। जब भी मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ ना, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए भी अभी फिलहाल, सो व्हाट हैपेंस इज, मुझे पता है कि कोई पीस ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा बना होगा ना, तो आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स, बट आई गेट दैट फीलिंग, यार ये बहुत अच्छा बना है। करेक्ट। सो दैट इज द हम्म, काइंड ऑफ फीलिंग। सी, इट डजंट मैटर कि भाई भाई सामने वाले को पसंद आया कि नहीं, पर द होल आइडिया इज लाइक, व्हाई एम आई राइटिंग दिस बुक? टू सर्व, राइट, टू हेल्प पीपल। तो हम लोग वो हेल्पफुल और सर्व कैसे कर पाएंगे? जब भी वो ज्यादा से ज्यादा रिलेटेबल हो, क्योंकि हम में से हर कोई आपके जितने पढ़े लिखे तो नहीं है, आप तो डॉक्टर हो। अरे ऐसा कुछ नहीं। राइट, राइट। तो हम लोगों को देयर इज अ आप वेरी मैम हाई अपने पॉसिबिलिटी। फील्ड में, आप अपने फील्ड में, मतलब अपना अपना एक्सपीरियंस, सबका अपना अपने फील्ड है। हाँ, बट अभी अगर सोच के चलो ना कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मैं तो नहीं बन पाऊंगी लॉजिकली, पर हम ऑथर राइट। बन हम भी जाएंगे। हम हम भी ऑथर बन हम सकते भी बन गए। ऑथर बन जाएंगे। आप ऑथर बन सकते हो, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ। दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो क्योंकि उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस लगते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन लगते हैं। ऑथर बनने के लिए भाई कोई सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है। सिर्फ दिल होना चाहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए, लोगों को हेल्प करने की नीयत होनी चाहिए। दैट्स मोर देन इनफ। करेक्ट। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, बोलिए। ये डाउट बहुत बार आता है मेरे को कि आजकल पढ़ता तो है ही नहीं कोई, तो मैं क्यों हम्म। अपना टाइम इसमें लगाऊं? मतलब लिखते लिखते ना फिर ये आता है, बिकॉज मैं एक्चुअली एक मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, तो माय मेन थिंग इज मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, एंड हम्म। फ्रॉम देयर आई टेक आउट टाइम, एंड बिकॉज दिस इज माय पैशन, राइटिंग। बट देन हम्म। देयर इज अ पुल एंड पुश, लाइक व्हेन आई एम इनटू दिस माय मेडिटेशन को एक बैक सीट हो जाता है। तो और कोई सी। पढ़ता ही नहीं है, कोई पढ़े तो एक वो मिलता है मोटिवेशन, लाइक सोशल मीडिया भी, जब आपने कहा, मैं आपका भी जब इंस्टा पेज देखती हूँ, इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट फॉलोअर्स, whereas we are trying our best. I'm making just now reels on graphology, parenting in the light of graphology, ki how you can know your child through their handwriting, जो मेरा ओके। 20 साल का एक्सपीरियंस है, एंड आई एम जस्ट इनटू कि अब ये चीज मैं लेके मरना नहीं चाहती हूँ, आई वांट टू पास इट ऑन, व्हिच नोबडी नोज एज सच. Graphology is ओके। there, but as a parenting में how this can help, it's a niche. नीश, But राइट। हाँ, but when I want to, when I'm making reels, I see इतने कम लोग उसको देख रहे होते हैं. फालतू का सी आई एंटरटेनमेंट आज सी के आई दिन वही चाहिए सबको. सी आई टेल यू, this is a very common thing that what you have pointed out. I'll tell you very honestly. So I have I have a big gang of friends. Okay, so we recently went out for outing. अभी मेरे केस में क्या हुआ, मैं वहां पे जाने के बाद है ना, what I had to do is like, मुझे मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स पे, if you notice, I at times post some B rolls जहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, I might be doing something and I'm हाँ. just posting. So these people were like throughout that journey. आज हम लोग, one second, let me mute everyone. Okay. So during the session, during the outing time, the whole day they were like planning. आज हम लोग ये रील बनाएंगे, ये रील बनाएंगे, ये रील बनाएंगे, ये रील बनाएंगे. But with the question that I have, मैंने उनको भाई पूछा, भाई तुम लोगों के पास इतना फुकट टाइम कैसे आता है? मुझे तो ऐसे रील्स दिखते ही नहीं हैं. Got it? Number one thing. Second aspect to that is when I started thinking about it, what I realized is not many people think about personal development. Not many people think about growth and evolving in life. मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी को तो भी बोला ना, every single day we just meet 15-20 same known faces. एंड हम लोग इतने हमारे कंफर्ट जोन में सो यूज टू हो गए, वी डोंट वांट टू एक्सप्लोर एनीथिंग न्यू. हम लोग वी आर सो स्केर्ड टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स. Imagine, like, I went for a training recently and I had people all around the world, around 800 to 1000 people all around the world. You will not believe it.
and everyone was legend in their field. That was the kind of exposure that I got. भाई हम लोग, मैं तो मर ही जाऊं ऐसे मुझे नेटवर्क के लिए मिलने के लिए, मतलब काम की बातें कुछ भी नहीं हुई. But you know, the kind of exposure that you get is too good. Now, coming back to your question is why should I write? See, write it because you have a passion for it. Write it because you want to leave a legacy. Because ये याद रखना कि मैं हमेशा मेरे वेबिनार में ये एग्जांपल देती हूँ. I remember when I was in college, I was a very short-tempered, introvert and a shy person. Okay, ये 3 चीजें थी मेरे साथ में. मुझे नॉन फिक्शन बुक क्या है मुझे कुछ पता नहीं था. हम लोगों का लाइब्रेरी पीरियड रहता था. सो आई रिमेंबर आई वाज अ बिग फैन ऑफ अगाथा क्रिस्टी एंड नैंसी ड्रू नॉवेल्स. तो मैं बहुत पढ़ती थी वो. तो एक बार आई रिमेंबर आई कुडंट गेट होल्ड ऑफ एनी बुक. तो अभी क्या पढ़ना है, बुक तो लेके जाना है, 1 हफ्ते के लिए मिलेगा. सो ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते गई, एंड द बुक दैट आई पिक्ड अप was How to Win Friends and Influence People. पूरा का पूरा बुक पढ़ लिया. Then there was another book that was my first introduction to non-fiction book. Okay. Then another book, I don't remember the name of that book, but it spoke about how do you analyze people based on their facial features, what zodiac sign they are, and how do you interact with them. तो मैंने खुद पे ऐसे ऐसे टुकड़ा, अभी वो जमाने में आज से 20 साल पहले यू डिडंट इवन हैव ऑल दीज लाइक जो इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था. द ओनली ऑप्शन दैट यू हैड वाज बुक्स, राइट. एंड देन आई वाज समवन हु, मुझे आज भी कुछ भी दे दो हाथ में मिलेगा, फुकट बैठी हूँ, आई विल नॉट यूज अ फोन, आई विल रीड समथिंग. वो मैगजीन रहने दो, न्यूज़पेपर रहने दो. बिकॉज बुक्स का ना बेस्ट पार्ट ये होता है, जो मुझे ऐसा लगता है, you get to live someone else's life without going through all those struggles. You get to learn from that person's experiences, and then you can avoid those pitfalls for yourself, right? तो अगर मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ, महर्षि सुश्रुत, महर्षि who's that? I forgot that guy. Ayurveda is based on this guy. Sushruta is for plastic surgery, and there is one more guy who does it for Ayurveda. I forgot his name. Sushrut Samhita and Charak Samhita. Maharishi Charak. Okay. So, jo Ayurveda, the 4 or 5 pillars of Ayurveda is based on Charak Samhita. And the plastic surgery that we do right now all over the world, that is based on Sushrut Samhita. There was a documentary that was made on Discovery on Netflix that I had watched, I remember. They had actually did a comparison of what they used to do hundreds of years back and what they are doing today. This Maharishi Sushrut, he used to do plastic surgery on the soldiers जो battlefield में जाते थे, जंग में जाते थे, नाक टूट गया, कान टूट गया, पैर टूट गया. So that time उनके पास metals नहीं थे. So what he used to do is they used to create the different kind of leaf. They used to use tree barks तो नाक जोड़ने के लिए, कान जोड़ने के लिए, and he used to do that. तो उन्होंने ना, उनके पास सिजर्स नहीं थी, तो उन्होंने वो स्टोन से कैसे सारी चीजें बनाई, वो सब कुछ उन्होंने वो चीज को डॉक्यूमेंट किया. And then they showed a comparison of the tools that are used in modern science today. The tools are exactly the same, सिर्फ वो पत्थर या ट्री बार्क से बनाते हैं या ब्रांचेस से बनाते थे, and they are using maybe creating it with silicon or this steel and everything, but the entire thing is still the same. So that was the legacy that those people left. हमको भी पता नहीं है कि हम लोग क्या legacy छोड़ रहे हैं, to be very honest. And when I'm talking about specifically non-fiction books, I always say non-fiction books are timeless. The reason it is timeless, 20 साल पहले भी वही प्रॉब्लम था मेरी जैसे लोगों को, कि भाई इंट्रोवर्ट है, शाय है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है नहीं पता है. आज भी प्रॉब्लम वही है. Got it? पूछ लो, क्या पूछना है पूछ लो, अभी हो गया मेरा बात करके. नहीं, वही है वापस से कि लिख रहे हैं, बट ऐसा कोई डीप टॉपिक्स भी नहीं है, जैसे जो आपने एग्जांपल दिया तो पूरा चरक संहिता एंड
हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कौन सा डीप टॉपिक है? वो अभी लोगों को मालूम पड़ गया है, इसलिए वो डीप टॉपिक है, राइट? बट अदरवाइज इट wasn't there. That person must have written it based on her life experiences. वो उसके लिए ऐसा लग रहा था, अरे यार डीप टॉपिक नहीं है. There is another book that is, मुझे उनका ऑथर का नाम नहीं पता है. डेल You can heal कार्नेगी. yourself. No, अच्छा, you can heal yourself. ल्यूइस है. हाँ, Lewis Ray. So you can heal yourself. Okay. There is another book that talks about मैं उसका मैं नाम भूल गई वो बुक का. इट टॉक्स अबाउट दैट आप एक सेकंड मैं गूगल कर लेती हूँ, मुझे ना वो एग्जैक्ट एग्जांपल याद नहीं आ रहा है. 1 सेकंड, लेट मी जस्ट अ मिनट. एटॉमिक हैबिट्स अभी तो नहीं काफी नहीं चल रहा. नहीं. Giving I forgot the name of the book. On ऐसा Atomic लगता है ये Habits सारे नहीं जो है. बुक्स हो चुके Atomic होते हैं. Habits नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है. There is a book, मुझे basically that book is all about, it talks about that person is also a doctor. और उसने ना वो चीज को स्टडी किया था कि if you someone is actually, it's like आप बीमार हो, ओके, तो बीमार हो तो मैं आपको एक कैप्सूल दे देती हूँ. तो एक्चुअली क्या प्लेसिबो होता है, वो इफेक्ट. प्लेसिबो इफेक्ट, यस, मुझे वो याद नहीं आ रहा था. हाँ, तो मैं बटरफ्लाई इफेक्ट चल रहा था मेरे दिमाग में कभी से, मुझे प्लेसिबो इफेक्ट याद नहीं आ रहा था. सो अभी उसने वो एक्सपेरिमेंट करके किया था. आई हैव अनदर पर्सन इन द कम्युनिटी जिनका बुक 6 महीने से उनका वो लिख ही रहे हैं, बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन सम बर्ड. जो बर्ड का नाम तो मैंने सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था when he मॉकिंग joined my बर्ड. community. नहीं नहीं, अलग ही है, मुझे नाम भी याद नहीं है उनका. एंड ही इज एक्चुअली उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं, उसका पूरा लाइफ साइकिल को, और वो लाइफ साइकिल के बेसिस पे वो बुक लिख रहे हैं. इट्स बिन 6 months एंड ही स्टिल राइटिंग इट. ठीक है. सो हमको भी पता नहीं होता है कि कौन सी बुक कब पिकअप करेगी. अभी जो बुक्स की बात हम लोग कर रहे हैं ना, जो बंदे रील्स देखते हैं उनको ये बुक्स के नाम भी पता नहीं होंगे. आई एम टेलिंग यू, तो वही because ना, they are मैंने not into self development yet. अब मैंने पेरेंटिंग की 2 बुक्स लिखी, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, पर कोई भी पेरेंटिंग की बुक सर्च करेगा तो मेरी बुक तक तो पहुंचेंगी ही नहीं, बिकॉज पहले स्पॉन्सर्ड आते हैं, फिर बेस्ट सेलिंग बुक्स आती है. नोबडी इज गोइंग टू गो दैट मेनी पेजेस, and even when they see, they will not buy because I'm not known. हाँ, but because you haven't positioned yourself properly, ये प्रॉब्लम है. वो देखो अभी कैसे है, मेरा भी बुक शायद एंड में ही आता होगा. सो आई हैड अ वेरी क्लियर गोल व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ लाइफ कोच, दैट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विथ वुमेन. ठीक है. बट मुझे मेरा जो सुपर नीश जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था. मुझे सुपर नीश मालूम था कि क्या करना है, but I had a meeting today in the afternoon. I was telling that person, though you have a super niche, but you need to have a tool, strategies, or what steps will you take to bring in that transformation into that person. अगर आपके पास वही चीज नहीं है तो मतलब पूरा खाली है सब कुछ. सो इसलिए अभी मैंने जब ये मेरा 3rd बुक लिखा, so you always remember, like every single book that you are writing, it is always a journey. A journey that is going to take you from place A to place B. ठीक है. तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी फिलहाल हम लोगों को पता नहीं है, बट बिकॉज विथ एवरी बुक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हर बच्चे के साथ में माँ का एक नया जन्म होता है. सो एक मैं ये बोलती हूँ कि एवरी बुक के साथ एक ऑथर का, वो इंसान का एक नया जन्म होता है. यू इवॉल्व एज अ पर्सन, बिकॉज आप आपकी खुद की दिल की गहराई में घुस के देखते हो कि भाई मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ बेस्ड ऑन, या दे सकती हूँ बेस्ड ऑन माई लाइफ एक्सपीरियंसेस. सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस.
And maybe over a period of time, you will also start finding what is it that you need to be focused on. What is it that the world needs and what is it that you can give to the world. आज के लिए प्रवचन ज्यादा हो गया लग रहा है मुझे. नहीं अच्छा था. Kuldeep is laughing चलो. at it. ठीक है. अच्छा, थर्सडे गाइस प्लीज कम ऑन टाइम, क्योंकि मैं ना बहुत मेरे पास टाइम कम होगा थर्सडे नाइट को, एंड आई एम ट्राइंग नॉट टू कैंसिल इट क्योंकि हम लोग डिले हो चुके हैं. बट see to it, at least have 2-3 chapters ready, everyone. That goes to Tushar, you also. At least 2 चैप्टर लिख के आ जाना, भले ही रफ हो, क्योंकि मुझे एडिटिंग प्रूफ रीडिंग करके आपको दिखाना है. एंड उस दिन का भी जो सेशन का है मुझे वो भी खत्म करना है. सो देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टू मच हो जाएगा, क्योंकि एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग और फॉर्मेटिंग तीनों चीज एक साथ हो जाएंगे तो खिचड़ी होने के चांसेस ज्यादा है. सो लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं. मैं शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूं, लेट्स सी, आगे पीछे कर देती हूँ. ये एकदम टेक्निकल चीजें सब साथ में आ जाएंगे तो वापस कंफ्यूजन नहीं बढ़ना चाहिए. बट एटलीस्ट टेक 2-3 चैप्टर्स, बी कीप इट रेडी. एडिटिंग प्रूफ रीडिंग हम लोग पक्का करा रहे. ओके, चलो गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर. Good night. Thank you. ओके मैम, गुड नाइट. Good night, everyone. हाँ.